यूपीआई भी 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन आदाब, 11 दिसंबर हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पर मनाया जाता है और इस साल भी हम इसे मना रहे हैं। और आज 11 दिसंबर है 2020। हालांकि कोविड की वजह से काफ़ी एक्टिविटीज़ थम गई, ज़िंदगी में काफ़ी रुकावटें आई, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी का नाम चलना है और हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और आज जे.एंड.के टूरिज्म ने बाकी जो हमारे एसोसिएशंस हैं, एडवेंचर टूरिज्म के साथ जुड़ी हुई एसोसिएशंस हैं या हाइकिंग एंड माउंटेनिंग क्लब है, उनके साथ जुड़कर आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया है। आइए इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और एंजॉय करते हैं आज की ये सेलिब्रेशन। We have the wildlife tourism. There is great scope for wildlife tourism in J&K, as mountains here are home to large number of wild animals, birds, plants, particularly world famous Hangul, Cervus elapis Hangul, which is unique to Kashmir. Then there is ecotourism. There are considerable conservation reserves, wetland reserves like Hokersar Lake, Warar Lake, Dal Lake, Garana Water Reserve. These water reserves are flocked by a number of migratory birds like ducks, geese, swans, mallards, common teal, pintail, etc. Jews come to Kashmir during winters, and a large number of bird lovers visit these places and enjoy. Then there is pilgrimage tourism. We have the important destinations like Amarnath Yatra, which is located in high mountainous areas, having routes from both Pahalgam side as well as Sonmarg side. Similarly, we have Mata Vaishno Devi Shrine located on a mountain. We have Ziyarat Sharif Ashmukam. We have Ziyarat Sharif Pakharpora, and so many other ziyarats in Kashmir which are on mountains, which are in hilly areas, and provide and offer a great scope, great opportunity for tourism. Similarly, we have golf tourism. Some of our golf tourist courses are in J&K are situated in mountainous areas like Pahalgam, Gulmarg, and these provide double means of amusement, refreshment to the visitors. Number one, playing of golf on one hand, and at the same time enjoying the nature at the other hand. आपके एम्बेसडर्स हैं, दे आर योर एम्बेसडर्स, एंड वंस दे पोस्ट समथिंग ऑन द सोशल मीडिया, ये इंस्टेंटेनियसली जो है वायरल होता है. सो यू नीड टू एनकरेज दिस टैलेंट एंड यू नीड टू गिव देम प्लेटफॉर्म. ऑल द डिपार्टमेंट्स नीड टू थ्रो ओपन their establishments
for these budding enterprising talent, so that we are able to showcase the world how hospitable this place is. अभी जब कोविड का टाइम था तो एक यहाँ काफ़ी क्लैरिटी थी उन दिनों, और पूरे कंट्री में लोग या पूरे दुनिया में लोग फोटोग्राफ खींच रहे थे क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल क्लैरिटी. तो यहाँ पे भी एक फ़ोटो खींचा गया विच वेंट वायरल एंड इट हैड thousands and thousands of shares and likes. So that is the power of the social media, and you need to harness this potential, and these people are your ambassadors. You need to harness their talent and synergize their efforts with the department. It is a matter of great pride and honor to be a part of the celebration of International Mountain Day 2020 in the beautiful city of Srinagar. It is extremely commendable that Department of Tourism Kashmir has taken valuable initiatives and made great efforts to celebrate, appreciate mountains, mountain diversity, adventurers, mountaineers, naturalists, associations, organizations contributing relentlessly and positively to the progress and development of adventure sports, sustainable tourism and protection of biodiversity and झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटियां. remembering the stalwarts and those who have gone and left us. It gives me immense pleasure to interact with experts, bright and intelligent youngsters who are the future leaders of this country. The cliche is that life is a mountain. You go up, reach the top, come back down, and set new goals and start the climb all over again. The mountains we climb are not only made of rocks, ice, and snow, but of dreams and desires. Where there is a will, there is a way can be translated as, if there is a way, I'll find one. If there is no way, I'll make one or create one. There is always a way if you are committed and passionate. There are three basic rules of mountaineering. It is always further than it looks, it is always taller than it looks, and it is always harder than it looks. This is life in a nutshell. Life is hard, life is tough. And we are not entitled to anything. Mountains are not fair or unfair. They are just dangerous. One has to constantly train and be focused and consistent to be a good and efficient mountaineer and climber. तकरीब के दौरान माउंटेनरिंग और हाइकिंग के शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया. इस वक्त हमारे साथ इस मौके पर बात करने के लिए एक एडवेंचर लविंग पर्सनालिटी हैं. जी हाँ, इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर जनाब महमूद अहमद शाह साहब. आइए उनसे जानते हैं कि आज के दिन की अहमियत. सर, देखिए, इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है दुनिया भर में मनाया जाता है. आज के दिन ये कोशिश होती है कि जो हमारा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हिमालयास और मोर पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर, की पहाड़ों की अहमियत क्या है और क्या मसाइल है. जैसे जो है आपको पता है डिफॉरेस्टेशन के इश्यूज़ है, फॉरेस्ट फायर्स है, इरोजन है, इरेटिक वेदर पैटर्न्स है, ग्लोबल वार्मिंग है. तो ये कहीं ना कहीं ये सारे जो तार हैं जुड़े हैं पहाड़ों के साथ. तो आज के दिन कोशिश यही है कि पहाड़ों की तई यंगर जनरेशन को हम आगाही दे पाए, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें और वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस. एंड एंडेवर यही है कि आने वाली जनरेशन को एक हम बेटर माहौल दे पाए. इस साल जो कोविड की वजह से सारी चीज़ें रुक गई, थम गई ज़िंदगी, लेकिन उसके बावजूद आपने आज ये इवेंट करवाया है, तो जो पूरे साल की एक्टिविटीज़ थी क्या वो कंटिन्यू रह पाई इस बार?
देखिए ये इस बार जो हम जो ट्रैकिंग होती थी इतनी हुई नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद रही। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने ट्रैक्स किए, एक्सपीडिशंस हुए, लेकिन जो है जिस पैमाने से होती थी वो इफ़ेक्टेड रही। इनफैक्ट जो यहाँ पे लोग ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग के लिए आते थे वो भी बहुत कम आए। तो लेकिन इस शम्मा को जो है जलाए रखना है, ये जो है इस को एडवेंचर को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो अच्छी खुशाइन बात है कि यहाँ पे न सिर्फ हम हाईलाइट कर रहे हैं माउंटेनियरिंग या ट्रैकिंग, बल्कि बर्ड एग्जीबिशन है, बर्ड फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, लैंडस्केप फोटोग्राफी एग्जीबिशन है। तो आज के दिन काफ़ी जो है मिक्स्ड रहा, इमोशनल इश्यूज़ भी रहे, फिर जो अचीवमेंट्स हुई उसकी खुशी भी रही। नाज़रीन, आज के दिन कई सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं इस इवेंट में शिरकत करने के लिए और आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ नवाब मौज़म खान एक माउंटेनियर हैं जो कि मेंबर हैं जे.एंड.के माउंटेनियर हाइकिंग क्लब के और इंडियन माउंटेनियर हाइकिंग क्लब के भी मेंबर हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के दिन की अहमियत और क्या कुछ कर रहे हैं वो माउंटेनियरिंग के लिए। नवाब, जो आज का दिन है इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो इसका एम है बेसिकली एक मैसेज पास करना है बेसिकली, जो इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स है। माउंटेन्स हमें हर लिहाज से जो है हमारे लिए मुफीद है। आप देखिए बेसिकली किसी भी एंगल से अगर हम देखें, बीट एक फॉरेस्ट्री जो हमें मिलती है, टिम्बर, फायरवुड या बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे हर्ब्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है। इन एडिशन टू दैट हमारे ग्लेशियर्स है। सो वी आर लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन देम, बट वी हैव like we are not understanding the importance of these mountains. So ये एक important day है जिसकी वजह से मतलब जो बहुत ही important है हमारे लिए। अगर हम ओवरऑल बात करें इस साल की, इस साल कोविड की वजह से सारी एक्टिविटीज़ पे रोक लग गई, ज़िंदगी पे रोक लग गई। तो आपको क्या लगा इस बार जो एक्टिविटीज़ होनी थी क्या आप उसे कर पाए, या जो बच्चे नए जुड़ने थे क्या उनको आप जोड़ पाए? कोविड की वजह से काफ़ी असर पड़ा बेसिकली। जैसे मेरा भी इस साल एवरेस्ट का हमारा सिलेक्शन हो गया था, मतलब 2020 में हमें एवरेस्ट क्लाइम करना था, बट कोविड की वजह से वो डिले हो गया, वो नेक्स्ट ईयर हो रहा है। बट आई वुड से कि बट अब वो पिकअप हो रहा है वापस। हमारे क्लब ने भी वापस संडे एक्टिविटीज़ जो हमारी संडे ट्रेक्स थे वो रिज्यूम हो गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ कमिंग बैक ऑन ट्रैक। सो या अभी जो क्लब की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, कब कब करवाते हैं, किस तरह से करवाते हैं और नए लोगों को कैसे जोड़ते हैं? बेसिकली जो क्लब एक्टिविटीज़ यूजुअली जो हमारा मेन जो प्रोडक्ट हम आप कह सकते हो या जो हम आपके जिससे हमें नया यूथ आता है वो संडे ट्रेक्स है बेसिकली। संडे ट्रेक्स में बेसिकली जो बिगनर जो है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है जहां उनको हम बहुत सारे एरियाज़ में ले जाते हैं, बहुत सारे नए एरियाज़ में ले जाते हैं। जो यूजुअली 1 डे हाइक्स होते हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे ट्रेक्स होते हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेज 3 डेज माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस होते हैं, जो भी मतलब जो विंड सिटी में हमारी पीक्स है जैसे माउंट कोलाहाई, माउंट हरमुक, माउंट टाटाकुटी, उनमें हम जाते हैं। सो या इस वक्त हमारे साथ एक फीमेल हाइकर है, नाम है तस्कीन। सिंस हाउ लॉन्ग यू आर इनटू हाइकिंग? It's like from past 1 year I'm doing hiking. So this year I have been to 6-7 places in Kashmir, that are the Shishnag, Tulian Lake, Dudcharan Lake, and other places too. So Why you joined hiking only? Why not other sport? because hiking is more like enjoying in nature. There is peace. You can you're like you can you have like you can see so many things in hiking. So it's a very important thing to join hiking for everybody, and there is no such gender equality on that. I've like we have a club that is the Jammu and Kashmir Mountaineer and Hiking Club. So I'm the member. So I hike with them usually. So for every I'm like for every girl should participate into this, and there are no such gender equality in that. Also you can participate anytime. You can feel the nature. You can see things. You can even like you will gain such a confidence in you that there is no such difficulty in your life you cannot face it. So you should join hiking and participate in hiking. नाज़रीन, आइए एक और हाइकर से बात करते हैं। जी हाँ, एक फीमेल हाइकर हमारे साथ है, अक्सा अख्तर। आइए उनसे जानते हैं कि अक्सा, आज के दिन के बारे में बताइए। आज हमारा इवेंट बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि
इसी दिन पे ही सबको याद आता है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी सेव करनी है, हमें कूड़ा करकट नहीं डालना है। बाकी दिन कुछ घंटों के लिए रहता है एंड देन वी आर बैक टू नॉर्मल अगेन। तो उस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करने के लिए ये इवेंट रखा गया है, ताकि लोगों में थोड़ी समझ आ सके कि वो ये सब चीज़ ना करे। और ये इंसान में एक जहनी तौर पर होना चाहिए, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनबॉर्न होना चाहिए, एक्चुअली इनबिल्ट होना चाहिए। तो आप कब से कर रही हैं हाइकिंग, और हाइकिंग ही क्यों चुना है स्पोर्ट? मैं 2016 से अफिलिएटेड हूँ इस क्लब के साथ। माउंटेन्स, हम पले बड़े हैं माउंटेन्स में, तो एक वो दिली लगाव है माउंटेन्स के साथ। तो ये एक रीज़न था कि मैं माउंटेन्स में बहुत जाना पसंद करती हूँ। और इज इट सेफ गोइंग टू माउंटेन? येस, इट इज़ सेफ़, इट इज़ वेरी, मतलब मैं जिन लोगों के साथ इस क्लब के साथ जाती हूँ आई फील वेरी सेफ़। और यही एक रीज़न है कि मेरे घर वाले भी मुझे अलाउ करते हैं उनके साथ जाने के लिए। तो आई थिंक बाकी सब पेरेंट्स भी जो है उनको भी यहाँ देख लेना चाहिए कि किस तरह से गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती है, और उनको भी यहाँ लाना चाहिए। आप देखेंगे जब भी हमारा संडे का इवेंट होता है, ट्रैक होता है, तो यूजुअली 50 बॉयज़ एंड 6 फीमेल्स, तो ऐसा रेशो रहता है। तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है कश्मीर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, बिकॉज बोथ द जेंडर्स हैव द राइट टू एक्सप्लोर द माउंटेन्स। तो वो एक चीज़ है जो बहुत बुरी लगती है। आप बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग द मेंबर ऑफ दिस, तूफान के दिन शहर गया था, बच गया, जिंदा हूँ, चमत्कार है। बच गए, हमारी किस्मत है। एक समय था जब आपदाओं के वक्त हम किस्मत के भरोसे थे, लेकिन अब राष्ट्रीय सोच ने दी है आपदा प्रबंधन को एक नई दिशा। तूफान से बचाव के लिए शेल्टर्स, भूकंप रोधी मकानों का निर्माण, पक्के बांध और मजबूत सड़कों के रखरखाव के लिए आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, कारीगरों और डॉक्टर्स को पुख्ता ट्रेनिंग देने के साथ साथ गांव-गांव में आपदा प्रबंधन के प्रचार को आज प्रमुखता दी जा रही है। आपदा से नुकसान हो सकता है कम अगर तैयारी करें हम, समय रहते हर प्रकार से हरदम। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। क्या आपका फ्लैट भूकंप से सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें। क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। क्लब, तो आप और ज्यादा फीमेल्स को कैसे लाएंगी इस क्लब में? मैं तो यही, पहले तो मैं पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करने की कोशिश करूँगी कि उनको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि आपके दिमाग में ठीक है वो है उनका वो क्राइटेरिया कि पता नहीं सेफ़ है कि नहीं, तो अपने एक्सपीरियंस जब तक हम बताएंगे तो मे बी उनके दिमाग में से जो ये डर है वो निकल जाएगा। और इवेंचुअली आई थिंक लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बस प्रॉब्लम यही है कि उनको घर में छोड़ते नहीं, अलाउ नहीं करते। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस इवेंट के होस्ट, जी हाँ, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जनाब निसार अहमद वानी साहब है। ये उनसे जानते हैं आज के दिन के बारे में। निसार साहब, जहाँ तक आपने देखा वर्ल्ड माउंटेन डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, इसके साथ साथ हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी फैसला किया कि हम भी इसको मनाएंगे इन कोलैबोरेशन विद वेरियस टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन जो हमारे हैं, पर्टिकुलर जो हमारे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, इसी तरह जो माउंटेन हाइकिंग क्लब है उनके साथ और स्कीइंग क्लब के साथ, ये सब एसोसिएशन मिलकर हमने इकट्ठे प्रोग्राम बनाया कि हम इसको प्रोग्राम में पूरा करेंगे। तो इसके साथ हमने ये 2 दिन की एक्टिविटीज़ कर दिया, जिसमें हम पहलगाम में भी प्रोग्राम कर रहे हैं, गुलमर्ग में भी प्रोग्राम कर रहे हैं और श्रीनगर में भी प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी आप हम श्रीनगर में बैठे हैं, आज सुबह पहले हमने शुरू कर दिया, यहाँ मोटर साइकिलिंग कर दी है, उसका प्रोग्राम इफ्तिताह कर दिया। इसी तरह हमारे यहाँ आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग है, उसके लिए हमने यहाँ से 25 लड़कियों का और 25 लड़कों का एक ग्रुप भेजा। हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 की जो हमारी माउंटेन्स है उनकी इम्पोर्टेंस को उजागर करना, उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के बारे में मैसेज देना, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज वेल एनिमल्स, उसका खास ख्याल रखना और उसकी प्रिजर्वेशन करना, कंजर्वेशन करना, और ये एक मैसेज देना कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ज़रूरी है सो फार एज मेंटेनिंग ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस इज कंसर्न। तीसरा कि जो माउंटेन्स हैं हमारे, ये कैसे टूरिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट ज़राया हैं, क्योंकि आप देखो हमारा जो लेट इट बी पिलग्रिमेज टूरिज़्म है, जो बड़े बड़े यहाँ ज़ियारतें हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं,
अमरनाथ जी यात्रा है, इसी तरह माता वैष्णो देवी है, या बड़े बड़े श्राइन्स हैं, वो पखरपुरा का श्राइन हो या अशमकाम का श्राइन हो, पहाड़ियों पर है, तो दैट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट। इसी तरह आप लेजर टूरिज्म देखो, कितना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट यहाँ होता है, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, पहलगाम में, जब पूरे मुल्क में स्कॉर्चिंग हीट होती है, टेम्परेचर तपिश होती है। या फॉर एग्जांपल आप एडवेंचर टूरिज्म का मैसेज देखो, एडवेंचर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वो फॉर एग्जांपल पैराग्लाइडिंग हो, वाटर राफ्टिंग हो, वो स्कीइंग हो, स्केटिंग हो, हिल स्कीइंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, तो वर्चुअली वो माउंटेन एरियाज में ही हो जाती है। तो मेजर भी वो लैंड बेस्ड हो या फॉर एग्जांपल वो वाटर बेस्ड हो। इसी तरह हमारा इको टूरिज्म का आप देखो, इको टूरिज्म हमारे बायो रिजर्व्स कितने हैं यहाँ, वाटर रिजर्व्स कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, नेशनल पार्क्स कितने हैं, या इसी तरह से फॉर एग्जांपल जो बर्ड सेंचुरीज है कितने हैं। तो नेचुरली ये सब चीज़ें मिलाकर हम देखते हैं कि टूरिज़्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, और इसको हम बढ़ावा दे के टूरिज़्म को बड़ी हद तक प्रमोट कर सकते हैं। यही हमारी एक प्रोग्राम की कोशिश थी, मैसेज थी, कि हम दुनिया को भी कन्वे करना चाहते हैं कि कश्मीर तैयार है टू होस्ट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। और आपने देखा हमने एहतियात, हर किस्म के एहतियात किया है सो फार एज कोविड इज़ कंसर्न। जो कोविड प्रोटोकॉल एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, या हमारे डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन है, या अपने टूरिज़्म की डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है, इन सब पर अमल मनान किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि 100% कोविड जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और आपके थ्रू, इसमें प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया को, पूरे यूथ को, इवन अपने यूनियन टेरिटरी के लोगों को, कि आप आ जाओ, कश्मीर एंजॉय करो, कश्मीर की ब्यूटी एंजॉय करो, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करो। अभी विंटर आ रहा है, विंटर गेम्स हमारे शुरू हो रहे हैं, पर्टिकुलरली विंटर में गुलमर्ग में और पहलगाम में हम शुरू कर रहे हैं, इवन श्रीनगर में कर रहे हैं। वाइट क्रिसमस मना रहे हैं, स्नो कार्निवल मना रहे हैं, यूथ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और गुलमर्ग में स्केटिंग कर रहे हैं, स्काइंग कर रहे हैं, और बाकी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक पॉजिटिव मैसेज आएगी, आपकी वसादत थ्रू से भी है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छा सा टूरिज़्म आएगा, दोबारा शुरू हो जाएगा, जो थोड़ा से मुतासिर हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर कंडीशन। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट, जी हाँ, श्रीमती अपर्णा कुमार IPS हैं, जो कि खुद एक माउंटेन से जुड़ी हुई लेडी हैं, प्यार करती हैं माउंटेन से, और खुद काफ़ी सारी समिट्स कर चुकी हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से और उनके एक्सपीरियंस के हवाले से। मैम, मुझे बहुत खुशी होती है कि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म कश्मीर ने मुझे आमंत्रित किया इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 को सेलिब्रेट करने के लिए, और इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड हॉनर कि जो इंटरनेशनल माउंटेन डे कश्मीर में मनाया जा रहा है, और मुझे बाहर से बुलाया गया, और मैं देहरादून से आई हूँ इन सुंदर वादियों का लुत्फ़ लेने, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म कश्मीर को। मैम, आप खुद माउंटेन से जुड़ी हुई हैं, आप माउंटेन से कब जुड़ी और क्यों जुड़ी? मैं उत्तर प्रदेश काडर की IPS अधिकारी हूँ, 2002 बैच की। मैं बहुत लेट मैंने माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग शुरू किया। 2014 में मैं कमांडेंट थी एक आर्म्ड बटालियन मुरादाबाद में। वहाँ से मैंने माउंटेनियरिंग शुरू किया, क्योंकि वो बटालियन जो है इंडो चाइना बॉर्डर में पोस्टेड रहती थी पहले, तो ITBP के पहले वही बॉर्डर्स का देखभाल करता था उस एल्टीट्यूड में। तो वहाँ का जो माउंटेनियरिंग गेयर, इक्विपमेंट्स, टेंटेज, ये सब देख के मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुआ, और मैंने कमांडेंट रहते हुए 2013 और 2014 में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने पीक्स क्लाइंब करना शुरू किया। मैसेज देना चाहेंगे सभी देखने वालों के लिए? ज़रूर। मैं इंटरनेशनल माउंटेन डे 2020 के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म कश्मीर को मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए, और पूरे भारत के वासियों को मैं ये सुझाव देना चाहती हूं कि ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर लोग हैं यहाँ। सबको यहाँ आके यहाँ का सुंदरता और यहाँ का हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। आप आइए, और यहाँ का जो टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म है, यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है,
और ब्यूटी है, ग्रैंडियर है, इसको एक्सपीरियंस करे। और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो नाजरीन, ये था आज का इवेंट जो आज टूरिज्म ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल माउंटेन डे। उम्मीद करते हैं कि पहाड़ों की अहमियत समझी होगी और पहाड़ों में क्या कुछ होता है वो सब समझा होगा, और इस तरह से आप पहाड़ों से प्यार करेंगे, नेचर से प्यार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी मुकाम पर आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।